Greetings, students, and welcome back to your English class. Now, what we are not afraid to die if we can all be together, right? Now, first, let us just give you an introduction. Just let me tell you what we had done in the last class. Now, the narrative describes how optimism, determination, and strong willpower raises one's spirit and help us overcome all forms of stressful situations. अब इसके बाद आपको पता चलेगा कि जब हम इस चीज़ को रीड करेंगे तो उनके बच्चे उनको कैसे हिम्मत देते हैं, राइट? एंड देन द नरेटर वॉज 37 years old businessman. He dream was to travel round the world through sea, just like Captain James Cook, which he wished to complete in 3 years. He was along with his wife Mary, his daughter Susan, and his son, who was only 6 years old. Right now, everything went well on till they sailed down the west coast of Africa and reached Cape Town. The trouble started on the second day out of the Cape Town. They began to encounter strong gales. Gales are the winds. They blew continuously for the next few weeks. Gales did not worry them, but the size of the waves were alarming, right? Up to 15 meters. They rose as high as up to the main mast. They expected the weather to improve on the New Year's Day. Sadly, the weather changed, but for the worse. The family celebrated this new year 1977 on board the ship. Next came a phase when the ship was caught in the stormy sea. The weather suddenly became very terrible. The writer thought that their ship would ride over the waves but were heavily caught amidst in stormy situation at the sea. There was water everywhere and they found the ship to be sinking. Now, the condition was extremely helpless and very pathetic. Water was gushing in from everywhere. Okay, now let us continue. Now, where were we? We were from here, right? Somehow, right? Now, can we start doing it? Somehow, I managed a stretched canvas and secure waterproof hatch covers across a gaping holes. Some water continued to steam below, but most of इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर साइड. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैनवस, क्या होता है कैनवस, होता है चिल्ड्रन एक क्लॉथ होता है जो कि वाटर प्रूफ कवर होता है. अब जहाँ से पानी अंदर आ रहा था ना, उन्होंने क्या करा, वो क्लॉथ लगा दिया. तो क्या कर रहे थे, उससे पानी थोड़ा बहुत रुक गया. अब जब पानी रुका तो इमेजिन करो क्या करता है ये. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर साइड. डिफ्लेक्टेड ओवर साइड मीन्स कॉज टू चेंज द डायरेक्शन. जैसे क्या कर रहा था, यहाँ पर हमने क्लॉथ लगा दिया तो यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, हिट कर रहा है और वापस जा रहा है, ठीक है, तो चेंज कर रहा है. वो क्या चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है. ओके, नेक्स्ट. Many more problems arose when our hand pump started to block up, with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit. Now, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई. क्या हुआ, सबसे पहली जो उनकी जो हैंड पंप था जो पानी को पंप कर रहा था बाहर, वो ब्लॉक हो गया. क्यों, वहाँ पर डेबरी थी. देखो डेब्रिस लिखा है बट हम डेबरी बोलेंगे, ठीक है, ऐसे साइलेंट. डेबरी क्या थे, चीज़ें जो पानी की वजह से फ्लोट करनी शुरू हो गई, इधर से उधर होना शुरू हो गए थे, वो खराब हो गया. एंड द कैबिन एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो उनके पास जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया. द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली. अब क्या हो गया, जो वाटर पंप था वो राइज करना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट 2 स्पेयर हैंड पम्प्स had been drenched overboard. अब वो जो 2 पंप और थे वो भी खो गए. क्यों, पानी से इधर उधर शिफ्ट हो गए. they were removed, they were pulled suddenly, right?
ओके तो वो भी क्या हो गए, गायब हो गए। अलॉन्ग विथ फोस्टे सेल, द जिप, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, और इन सब के साथ ये भी चीज़ खो गई। ठीक है, फोस्टे सेल क्या होता है, अ रोप टू सपोर्ट द शिप। ठीक है, जो सारी की सारी जो रोप्स होती हैं जो सपोर्ट करती है वो भी गायब, द जिप भी गायब हो गई थी। ठीक है, डिंगीज, डिंगीज क्या होती है बेटा, स्मॉल बोट्स होती हैं। एक लार्ज बोट, एक लार्ज जो शिप में छोटी छोटी बोट्स होती ताकि वो बच सके, वो भी गायब हो चुकी थी। और जो उनका जो मेन एंकर था वो भी गायब होता है। एंकर कैसे होता है चिल्ड्रन, देखो आई शो यू। एंकर ना इस काइंड होता है, वो क्या करता है कि जो शिप की स्पीड होती है ना वो उसको रोक देता है, तो वो भी क्या था, गायब था चिल्ड्रन। Then I remembered we had another electric pump under the chart room. I connected it to an out pipe and was thankful to find it worked. अब उसको याद आया कि एक इलेक्ट्रिक पंप था कहाँ पर, चार्ट रूम के फ्लोर में। तो उन्होंने क्या करा, वो आउट पाइप उसको कनेक्ट किया और पानी बाहर और थैंकफुली वो चलना शुरू हो गया, तो पानी पंप बाहर होना शुरू हो गया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। ड्रैग्ड मतलब वो पूरी रात वो इतने ठंड में थे। पंपिंग, स्टीयरिंग मीन्स वो जो व्हील को स्टीयर करते हैं, एंड वर्किंग ऑन दी रेडियोज, वर्किंग दी रेडियो पे की सिग्नल भेजना कि हम कहाँ हैं, फंसे हुए हैं। We were getting no replies to our mayday calls. Mayday calls होते हैं words used to signal ships stuck in a disastrous situation through radio. तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते होंगे कि जिसमें वो डिज़ास्ट्रस में मुश्किल में फंस जाते, तो वो कोई कॉल्स बनाते, बट विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन देयर रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। बट क्या हुआ, वो वर्क नहीं करे क्योंकि दे वर एट द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, सिग्नल से काफ़ी दूर थे वो लोग। तो क्या हुआ चिल्ड्रन, वो कहाँ पर वो ये चीज़ें सिग्नल ही नहीं पहुँच पाए। सू हेड वॉज सोलन अलार्मिंगली, तो वो बोलते हैं सू का जो हेड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंगली हो रहा था। शी हैड टू इनॉर्मस, बड़े ब्लैक आइज, एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। अब वो क्या हुआ, सू को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, उसका सर सूजना शुरू हो गया था चिल्ड्रन, सॉरी, उसका सर क्या हो गया था, सूजना शुरू हो गया था, राइट। और उसके साथ साथ क्या हुआ, देयर वाज अ डीप कट इन द आर्म। व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड, आई डिड नॉट वांटेड टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव ऑल ऑफ अस। तो जैसे उसने बोला कि तूने हमको बताया क्यों नहीं कि इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई है, किसको, अपनी बेटी को पूछा है। तो उसने बोला कि अगर मैं बता देती ना तो आप लोग मेरी चिंता करने लगते हैं, ताकि आप तो हमें बचा रहे थे, तो मुझे क्या करना था, आपको इस चिंता में नहीं डालना था। देखो, एक 6-7 साल के बच्चे को इतनी अक्ल थी कि वो कैसे इतनी सिचुएशन में क्या करे, इन चीज़ों का ध्यान रखें। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. अब January 3 की बात है कि पानी क्या होना शुरू हो गया, सफिशेंटली कंट्रोल होना शुरू हो गया, और रोटेशन वाइज वो क्या करने लगे, रेस्ट करना। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक, बहुत बड़ा लीक उनके उसमें था, राइट। Somewhere below the water line, or somewhere where in the below the water line, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. अब क्या हुआ, I'll show you क्या हुआ था। वो बोल रहा है ये तो हमारी क्या है, बोट है, इमेजिन, तो ये क्या होगी, हमारी वाटर लाइन होगी, राइट। ये हमारी क्या होगी, वाटर लाइन। अब जब ये वाटर लाइन के नीचे एक ऐसी चीज़ होती है, कील, राइट, ये क्या होती है, कील होती है। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें स्मैश हो गई थी, टूट गई थी। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। अब वो बोलते हैं जो स्टारबोर्ड थी, स्टारबोर्ड राइट साइड ऑफ द बोर्ड, वो तो पूरी टूट चुकी थी, ठीक है, वो कुछ नहीं होल्ड कर पा रहे थे। बट वहाँ पर क्या था, 2-3 टुकड़े थे, किस चीज़ के, लकड़ी के टुकड़े थे जो कि उसको स्टारबोर्ड को मुश्किल से
होल्ड कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, ताकि वो टूटे ना, पूरी की पूरी शिप टूटे ना, राइट। नाउ लेट्स डू, वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स, तो कितने आवर्स के लिए सर्वाइव कर गए थे वो? 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, ठीक है। बट वेव वॉकर इज द शिप could not hold together long enough for us to reach ऑस्ट्रेलिया। बोले 5 घंटे, बट इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं था कि हम ऑस्ट्रेलिया तक इस शिप, टूटी हुई शिप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। अब वो बोलता है सिंपली कि मैंने चेक करा, क्या चेक करा, कैलकुलेट करा, उनके पास जो चार्ट रहता है, उनके पास जो बहुत सारी वो रहती है ना, इंफॉर्मेशन रहती है, तो वो चेक करा, तो हमें उससे पता चला कि वहाँ पर स्मॉल आइलैंड है दो। एक तो थी आइल एम्स्टरडम विच अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और क्या थी, एक तो आइल एम्स्टरडम थी वो कि फ्रेंच साइंटिफिक, फ्रांस की थी वो, जो कि एक साइंटिफिक बेस होती है, साइंटिफिक बेस जहाँ पर वो साइंटिफिक चीज़ों को कैरी आउट कर पाए, राइट, दैट इज साइंटिफिक बेस। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ओशन। पिन प्रिक क्या होता है? जब हम पिन लेकर किसी को हल्का सा प्रिक करते ना ताकि छेद हो जाए, ठीक है, इन दी वास्ट ओशन। नाउ इमेजिन यू टेक अ पिन एंड प्रिक इन योर बॉडी, तो पूरी बॉडी में वो क्या है, छोटे छोटे होल हो जाते हैं, राइट। और पूरी बॉडी में हमें दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। सिमिलरली वो बोल रहा है ये आइलैंड पिन प्रिक की तरह थी, इतने बड़े ओशन में हमें कहाँ दिखती। बट unless the wind and seas abated so we could hoist sail, बट जब तक ये क्या होता है, ये जो सेल थी, ठीक है, जब तक ये क्या थी, जो ये सेल थी, इसको रोक और आता तो हमें क्या करना था, हमें सेल होस्ट करनी थी, ठीक है, समथिंग अनप्लेजेंट टू बिकम लेस इंटेंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बुरी सिचुएशन बुरे होने से पहले हमें होस्ट करना था सेल को। आर चांसेस कुड बी स्लिम इंडीड, स्लिम बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड टू पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और ये जो बहुत बड़ा वेव आया था जिसने हिट करा था, वो क्या कर रहा था, उसने हमारे जो सेकेंडरी इंजन है उसको भी खराब कर चुका था, ठीक है, क्योंकि वो क्या था, सेकंड इंजन था, वो भी हमारे वेव से खराब हो गया था, राइट। ऑन जनवरी 4, जनवरी 3 की बात हो गई, क्या क्या हुआ है, अब जनवरी 4 की बारी है। After 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. कंटिन्यूस पंपिंग करने के बाद हम थोड़ा बहुत पानी अब बचा हुआ था। नाउ वी हैड ओनली वन की पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, बस अब हमें क्या करना था कि जिस पेस से, जिस स्पीड से पानी आ रहा था, हमें उसको रोकना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम क्या वी कुड नॉट, हम क्या सेल, मेन मास्ट है ना, हम उसको नहीं कर सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग, प्रेशर ऑन द रिगिंग मतलब जो सारी की सारी वायर्स थी टू सपोर्ट द शिप, ठीक है, डैमेज हो चुकी थी। पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल पार्ट, सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। अब फिर वो हल्के से उन्होंने छोटा सा कपड़ा नहीं लगा सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो सारा का सारा जो रोप्स थे वो क्या कर रहे थे, उन पे प्रेशर पड़ रहा था। अब वो उन्होंने क्या करा, जिप को वो करके होस्ट करके, अब वो क्या कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे, 2 आइलैंड की तरफ। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, तो मैरी को क्या मिले, 2 कॉर्न बीफ मिला और क्रैकर बिस्किट्स मिला। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन 2 days, और 2 दिन के अंदर उन्होंने कुछ नहीं खाया था, कुछ नहीं पिया था, बट क्या मिला, सिर्फ ये कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स। बट आर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिविड, बोले ये जो रिलैक्सेशन मिली थी ना, ये बहुत कम के लिए थी। एट 4 PM, मतलब 4 बजे की शाम को, ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, वह ब्लैक क्लाउड्स फिर आना शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots, और 1 घंटे के अंदर ही अंदर 40 knots के स्पीड में विंड्स आना शुरू हो गई थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और वेव्स क्या हो रहे थे, हायर होते जा रहे थे। द वेदर कंटिन्यू टू डिटोरेट, और बुरा होता जा रहा था,
क्या weather throughout the night, and by the dawn on January 5 our situation was again desperate. बोले और जनवरी 5 तक तो सिचुएशन और भी ज़्यादा बुरी होना शुरू हो गई थी. ठीक है. नाउ when I went in to comfort the children, तो वो ना अपने बच्चों को कंफर्ट करने जाता है, पुचकारने जाता है, देखने जाता है कि सब कुछ ठीक है, कहीं वो डरे हुए तो नहीं है, कहीं वो परेशानी में तो नहीं है, तो उनको कंफर्ट करने जाता है. जॉन आस्क्ड, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? तो जॉन उनको पूछता है कि क्या पापा, क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम, तो उन्होंने अश्योर करा, नहीं नहीं ऐसी बात मत सोचो, हम तो बच जाएंगे. एंड दैट वी कुड मेक इट, और उन्होंने बोला नहीं नहीं हम बच जाएंगे, वी कुड मेक इट. बट डैडी, ही वेंट ऑन, बट उसने बोला पर पापा, वी आंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, उसने बोला हम मरने के लिए हम डरते नहीं है मरने से. इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जब हम सब साथ में हैं तो हम क्यों डरे मरने से. यू एंड मम्मी, सू एंड आई, बोले कि जब हम सब एक साथ हैं तो हम कैसे मर सकते हैं. ठीक है, हम डरते नहीं हैं मरने से. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, तो बोले मेरे पास शब्द ही नहीं थे. इतना छोटा बच्चा मेरा हौसला वो कर रहा था, जाहिर कर रहा था, मुझे पुश कर रहा था. बोले मेरे पास कोई शब्द नहीं थे. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन determined टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड. और वो अपने क्या होता है बेटे का कमरा छोड़कर, ठीक है, वहाँ के चिल्ड्रन के कमरा छोड़कर आगे बढ़ते हैं विद मोर डिटर्मिनेशन, विद मोर, है ना, होता है कि हमारा बच्चा हमारे को ऐसे बोल रहा है. टू प्रोटेक्ट द वीक इन स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू, तो अब उसने बोला कि जो खराब हो गया, टू रेज और लिफ्ट द एफर्ट्स. ठीक है, उसने बोला अब हम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो ये स्टारबोर्ड है इसको ठीक करना ही पड़ेगा. विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द अनकमिंग वेव्स, बोले इससे पहले वेव्स आती रहे और हमें और ज़्यादा परेशानी होती रहे, हम क्या करेंगे, हम इनसे बचेंगे. यूजिंग एन improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2-liter plastic barrels of paraffin. Now what is paraffin? It is actually, children, colorless flammable oil. अब उसने क्या बोला, उनको एंकर बनाना था क्योंकि स्पीड रोकनी थी, तो उसने क्या करा, उनके पास 2 बैरल्स थे, बैरल ऐसे होते हैं, ठीक है, और उनके पास रोप थी, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर बांध कर उसको भी बांधना शुरू कर दिया. ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर 22 लीटर के थे. ठीक है, तो उनके अंदर 22 लीटर की लिक्विड आ सकती थी, तो इतने हैवी बैरल्स उनके पास थे. राइट. Now that evening Mary and I sat together holding hands. अब उस शाम को मैरी ने और मैंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा. As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks, जो वो मैंने बताया था ना, प्लैंक्स टूट गई थी, कुछ ही प्लैंक्स बची हुई थी जो हेल्प कर रही थी. ठीक है, तो उससे क्या कर रहे थे, जो टूटी हुई प्लैंक्स है उससे पानी आ रहा था. We both felt the end was very near, तो उन दोनों ने सोचा कि नहीं अब तो हम मरने वाले हैं. But Wave Walker rode out the storm and by the morning of 6 January the wind easing, अब wind थोड़ा ease होके, I tried to get a reading on the extant. What did they get a reading on? An extant, and which is an instrument which graduate arc degree from taking navigation. ये एक instrument है, right? Okay. Extant is a instrument with graduated arc degree for taking altitude and navigation. Back in the chart room, I worked on wind speeds. अब वो देखने लग गया कि हम कितनी दूरी पर हैं. Changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. अब वो ढूंढने लग गया कि हम किस position में. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide island. While I was thinking, Sue moving painfully joined me. अब जैसी जैसी वो सोच रहा था कि हमें कैसे मिल सकता है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो जो उनकी बेटी है वो सू अंदर आई. ठीक है, अब सू ने क्या बोला,
लेट्स सी, राइट। वो बहुत ज़्यादा पेन में थी क्योंकि उसका सर क्या हो गया था, सूज गया था, और उसकी आंखें दोनों काली हो चुकी थी, और प्लस उसके आर्म पे कट भी था, तो बहुत ज़्यादा पेन में थी। The left side of her head was now very swollen and were blackened eyes swollen to slits. अब देखो उसकी आंखें इतनी ज़्यादा, मतलब उसका हेड इतनी ज़्यादा सूज गया था कि जो उसकी आंखें इतनी छोटी छोटी हो गई थी। किस चीज़ के लिए? स्वोलन के लिए। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और उसने क्या, देखो इतनी मुश्किल टाइम पर भी उसने एक कार्ड बनाया था, और उस पे उसने कुछ लिखा हुआ था, राइट। तो शी गेव हिम अ कार्ड. On the front, she had drawn caricatures. Caricatures are picture of a person, of Mary and me with the words, here are some funny people. तो उसने क्या करा, कार्ड के बाहर से ना कुछ दो लोगों की पिक्चर बनाई, उसकी और मैरी की, ठीक है। और बताऊँ वो क्या है, कैरिकेचर्स होते हैं पिक्चर्स ऑफ अ फनी पर्सन, ठीक है, और वो बहुत फनी लग रहे थे, ठीक है। डिड दे मेक यू लाफ, वो पूछती है डिड दे मेक यू लाफ, बोले ये पिक्चर देखकर तुम्हें हंसी आई है? सो आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, वो बोलते मैं तो हंसा, ठीक है, उन पिक्चर। डिड इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज था। क्या मैसेज था? ओह हाउ आई लव यू बोथ, बोल रहे मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, तो बोले ये कार्ड सिर्फ क्या है, थैंक यू बोलने के लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, उसने बोला लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट, और वो लिखती है समहाउ वी हैड टू मेक इट। तो वो बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे उनको हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द next phase of this chapter. Okay.